Good morning students. Welcome in Business Studies class. In this session of Business Studies class, we are going to discuss the last topic of Unit 6, that is Business and Environment Protection. Pollution means injection of harmful substances into the environment causing serious damage to human and other life. Pollution causes undesirable changes in the physical, chemical or biological characteristics of our air, land and water that can harmfully affect human and other life. Based on the nature and type of environment affected, pollution may be categorized into 4 types. First one is air pollution. Some business units make use of coal. The smoke produced by coal pollutes the air. Similarly, some other units use chemicals which produces poison gases. They are highly dangerous for all the living beings. Next is water pollution. Business units generally pollute water into 2 ways: by releasing highly toxic things into the water of rivers, and secondly by allowing dirty waste laden water into the clean river water. And third one is land pollution. Dumping of toxic waste on land causes land pollution. It damages the quality of land, making it unfit for agriculture sector and plantation of trees. And the last one is noise pollution. Some factories produce a lot of noise. People living in a noise polluted areas fall victim of many diseases like deafness. Now come to the next topic, that is the need of pollution control. Pollution control is needed to preserve the environmental resources and improve the environmental quality. In our surroundings, pollution can be found in all walks of life like water, air and land. So water is unfit to drink and air is harmful to breathe and land is unfit to live. Business plays an important role in polluting the atmosphere. So they need to take suitable measures for pollution control, not merely to avoid criticisms against them but also to enjoy other benefits of such measures. Given below are some key reasons to control pollution. First one is improved public image. As society becomes increasingly conscious of environmental quality, a firm's policies and practices for controlling waste will increasingly influence people's attitude towards its working. A firm that protects and promotes the environment will be able to enjoy good reputation. आज का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, इस एनवायरनमेंट में जो जनरल पब्लिक है वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. सभी लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, बहुत ही फेवरेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. तो एक बिजनेस फर्म को ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल रेगुलेशंस अडॉप्ट करने चाहिए जिससे वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे और अपनी वर्किंग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है पब्लिक के सामने जो है प्रमोट करे. इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा और उस कंपनी की, उस फर्म की जो गुड रेपुटेशन है वो सबके माइंड में बिल्ड हो जाएगी. अगर किसी कंपनी फर्म को अपनी गुड रेपुटेशन पब्लिक के माइंड में बनानी है तो उसे एनवायरनमेंट की गुड क्वालिटी के लिए कॉन्शियस होना होगा, तभी वो लॉन्ग सरवाइव कर सकती है मार्केट के अंदर. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी. इट इज ए साउंड बिजनेस पॉलिसी टू इंस्टॉल pollution control devices in its premises to reduce the risk of liability of paying compensation to the affected people. देखो, अगर pollution से किसी भी प्रॉब्लम में कोई फंस जाता है तो उस प्रॉब्लम का कंपनसेशन जो है बिजनेस फर्म को देना पड़ सकता है.
अगर आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम का कंपनसेशन आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना चाहते हो तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि आपको अननेसेसरी कंपनसेशन पे ना करने पड़े, कोई रिस्क क्रिएट ही ना हो। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। Pollution control measures can check diseases like cancer, heart attack and lung complications. Fourth one is preventing economic losses. There are many economic losses which can be reduced by pollution control. Pollution control can reduce cleaning and washing expenditures. Expenditure for the damage of building will also get reduced. अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करते हैं तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट की सेविंग हो जाती है, यानी कि हमारी बिल्डिंग डैमेज नहीं होती हैं, बिल्डिंग गंदी नहीं होती हैं जिनको क्लीन और वॉश कराने पर हमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़े। लास्ट वन इज अदर सोशल बेनिफिट्स। पोल्यूशन कंट्रोल रिजल्ट्स इन मैनी अदर बेनिफिट्स लाइक clear visibility, better quality life and availability of natural resources in a purer form. These are the some points related to the importance of pollution control. The next topic is role of business in environmental pollution, कि business किस तरह से environment को pollute करने में अपना contribution दे रहा है। Business is a main contributor to the pollution of environment. Business causes pollution in the following ways. First one is emission of gas and smoke from manufacturing plants. बहुत सारी फैक्ट्रीज से अलग अलग तरह से कोल केमिकल्स यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा एयर है वो पोल्यूट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एक्वाजिशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर सेटिंग अप प्लांट्स। हम नई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपने जो पेड़ है उनको काट रहे हैं, जिससे हमारा जो है एयर की जो प्योरिटी है वो कम होती जा रही है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इनटू रिवर्स एंड कैनल्स। हम जो वेस्ट मटेरियल्स होता है इंडस्ट्रीज का, उनको नदियों में बहा देते हैं, जिससे जो है वो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू द ओपन स्पेस। अगर कोई सॉलिड वेस्ट है तो जहां पर भी खाली जमीन पड़ी हुई है, उस खाली जमीन के ऊपर उस सॉलिड वेस्ट को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स ट्रांसफर हो रही हैं, यानी कि कॉमर्स ने बहुत इंक्रीज कर लिया अपने फील्ड में, तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने से ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। यूज ऑफ मशीन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉइज पॉल्यूशन। लास्ट वन इज ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश हो रही हैं, जिससे पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। The next topic is role of business in environmental protection. अब environment को pollute करने में business पूरा contribute कर रहा है, तो business को खुद ही कुछ steps लेने होंगे जिससे business environment को protection provide कर सके, क्योंकि उस business ने उसी environment में रहकर ही survive करना है। अगर एनवायरनमेंट खराब होगा तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस को भी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में अपना प्रॉपर रोल प्ले करना चाहिए, तभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है, अदरवाइज एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता। देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट शुड क्रिएट ए वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसी पॉलिसीज यूज करनी चाहिए, ऐसे मेजर्स यूज करने चाहिए, ऐसा वर्क कल्चर एस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो और पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट इस बारे में नहीं सोच रहा है तो कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं रह सकता पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ। Second one is sharing the ideas and technical information regarding environmental protection among the employees. टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी टेक्निकल मेजर्स आइडियाज यूज किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में,
पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन सभी को उसे शेयर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ये नहीं कि हमने मेजर्स यूज़ कर लिए लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ को तो पता ही नहीं है कि उन मेजर्स को किस तरह से ऑप्ट किया जाना है, और काम सारा किसने करना है, एम्प्लॉयज़ ने करना है। उनके साथ प्रॉपरली ओपन डिस्कशन होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट इज यूज गुड क्वालिटी मटीरियल। फोर्थ वन इज अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिफ्थ वन इज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। सिक्स्थ वन इज यूज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। न्यू साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना चाहिए कि जो हमारा वेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन का जो भी वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट को ऐसे ही लैंड में या रिवर्स में नहीं छोड़ देना चाहिए। उसके लिए साइंटिफिक मेथड यूज करके उसे रिसाइकिल करना चाहिए, उससे दोबारा कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना चाहिए, उसे किसी रिसाइकलिंग फेज में डाल देना चाहिए। Next is support in government programs like cleaning up of polluted water sources, plantation of trees, checking deforestation, etc. Last is timely assessment of pollution control programs. These are the some important steps that contribute in environmental protection. Thanks and have a nice day. Finally, we can say that stop pollution, save Earth.